والے ہنستے دیکھے والے ہیں، سنی ماں کا لال ہاتھ اٹھائے گا، ہم بریلی والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المکرم الامین۔ جی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مفتی تبریز، اس نے چیلنج مناظرہ کیا کہ کوئی بھی بریلوی عید میلاد النبی کو ثابت کرو اور 1,00,000 روپے کا انعام لے جاؤ۔ پھر میں نے ایک پوسٹ جاری کی جس میں اس کو چیلنج مناظرہ میں نے دیا، تو جب اس پوسٹ کو دیکھنے کے بعد اس تبریز خناسی نے مجھے کال کی، میں نے اس کی کال کو اٹھایا۔ جب میں نے کال اٹھایا اس کے بعد اس سے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی، اس کی دھجیاں اکڑ گئی اور پھر یہ کہنے لگا کہ ہم جھوٹوں سے مناظرہ نہیں کرتے، ہم جھوٹوں سے مناظرہ نہیں کرتے۔ حالانکہ میں نے کہا کہ مناظرہ جھوٹوں سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ بات کفر و ایمان کی ہو رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ مناظرہ جھوٹوں سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بوکلایا اور اس کے آگے سے گیلی اور پیچھے سے پیلی ہو گئی، اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ پھر میں نے تقریباً اس کو 25 سے 30 کالیں لگائیں، اس نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ بعض کال لگی تو اٹھائی نہیں اور بعض کال لگی نہیں، اور پتہ نہیں کیا سسٹم یہ کرتا ہے کہ اس کا فون لگتا ہی نہیں ہے، کبھی انکمنگ بند بتاتا ہے، کبھی کچھ یہ معاملہ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب ثبوت نہ لا سکیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اس نے ثابت کیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، بے شک وہی جھوٹ گڑتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ میں نے کہا تھا کہ مناظرہ جھوٹوں سے ہی ہوتا ہے، تو اللہ نے بھی فرمایا کہ بے شک وہی جھوٹ بولتے ہیں، وہی جھوٹ گڑتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو میں دیوبندیوں کو کافر سمجھتا ہوں، اور کافر کی گواہی کو کوئی اعتبار نہیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ کافر جھوٹا ہے، کافر کی گواہی کو کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ بے شک وہی جھوٹ گڑتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو میں دیوبندیوں کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے اس کو جھوٹا کہا تھا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ مناظرہ اصل میں کفر و ایمان کا مناظرہ جھوٹ پر ہی ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جھوٹ تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ کَمَثَلِ آدم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ سب سے بڑا جھوٹ تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج مباہلہ کیا کہ تو جھوٹا ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اگر یہ جھوٹ نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چیلنج مباہلہ کیوں کرتے؟ پتہ چلا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اسی جھوٹ پر اس کو چیلنج مباہلہ کیا گیا۔ تو اس لیے مجھے پتا ہے دو خناس سب سے بڑے جھوٹے مکار ہیں، اس لیے میں نے اس کو کہا کہ مناظرہ اصل میں جھوٹوں سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ جھوٹا نہیں ہوتا تو یہ کول کاٹ کر نہیں بھاگتا۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں اس تبریز بھنگی کو، یہ لے کر آئے اور میرے سامنے بیٹھے آ کر لائیو مناظرہ کر لے، ایک بار اچھی طریقے سے پروفیشنل طریقے سے ایک بار مناظرہ ہو جائے، پوری عوام دیکھے گی کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ آئیے پہلے اس آڈیو کو سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ جی والسلام، کون؟ خیریت سے ہیں؟ ہیلو، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ بتائیں۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اچھا، مفتی حسن تبریز مدنی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی مفتی حسن تبریز مدنی بول رہا ہوں۔ جی ہاں مفتی صاحب بول رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ بہت چیلنج کرتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت پر کہ وہ کافر ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ سنیں نہیں، میری بات سنیں نا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے ایمان پر بات کرو گے یا شفیع تھانوی کے کفر پر بات کرو گے؟ ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے، میری بات سنیں نا، پہلے میری بات سنیں نا۔ اب یہ بتائیے پہلے، کیا جھوٹے لوگوں سے مناظرہ کرنا چاہیے یا نہیں، یہ بتائیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔
मगर मैं कर सुनिए ना, जो सवाल करे उसका जवाब दीजिए। मगर मैं ये बात सही है, झूठों से मुनाजरा नहीं करना चाहिए, मगर आपसे मैं इसलिए मुनाजरा कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत चैलेंज कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप एक नंबर के झूठे हैं। ठीक ठीक, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना आप। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो पूछ मुद्दे पर आइए। सरकार आला हज़रत को काफिर साबित करेंगे आप? बात देखिए, मुनाजरा किससे कहते हैं, वही बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले ये बताइए मुझे, एक बात क्या झूठों से मुनाजरा करना चाहिए? आप एक बात बताएं, सुनो ना। आपके आला हज़रत से हम गुफ्तगू करेंगे, सुनिए ना, आपके आला मुफ्ती साहब, आप पहले एक बात बताएं, आला हज़रत को क्या समझते हैं आप? आप क्या समझते हैं? मैं उसको काफिर समझता हूँ। काफिर समझते हैं? हाँ, आपकी किताब किताबुल नवाज़िल सफ़ा नंबर 194 में लिखा है कि जो आला हजरत को काफिर कहता है वो खुद काफिर है और ज़ैद को तौबा करनी चाहिए। तो मुफ्ती साहब, आप तो अपने घर की किताब से काफिर हो गए। सुने ना, आप तो अपनी घर की किताब से काफिर हो गए। किताब तो दूर की बात, मेरी बात सुनिए। अगर किसी मोमिन को कोई काफिर कहता है और हालांकि वो मोमिन काफिर नहीं, तो कहने वाला क्या होता है? हदीस के एतबार से क्या होता है? वो काफिर है ना? आपके आला हजरत ने मौलाना कासिम नानोतवी को, मौलाना रशीद अहमद गंगोही को कुफ्र करा, काफिर करार दिया, मालूम है ना? वो काफिर, सड़ा हुआ काफिर है। वो काफिर करार दिया ना? वो सड़ा हुआ काफिर है। किस बात? रशीद अहमद गंगोही सड़ा हुआ काफिर है ना? मैं कुफ्र साबित करूंगा। आपके किसी अकाबिर ने सरकार आला हज़रत को काफिर नहीं कहा, तो आप अपने अकाबिर से बड़े हैं, आप अपने उलमा से बड़े हैं, आप अशरफ अली थानवी से बड़े हैं, आप रशीद अहमद गंगोही से बड़े हैं। सुनिए ना, भौंकने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, पहले ये बताइए मुझे, पहले मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात चालू रखिएगा। पहले मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट रुके। मुफ्ती साहब बात सुने, मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब बात सुने मेरी, बात सुने मेरी। सुनिए ना, झूठों से मुनाजरा करना चाहिए, हाँ या ना, इसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने। आगे आपकी बात सुनेंगे। पहले बताइए, अभी आपने सरकार आला हज़रत को जो काफिर कहा है वो काफिर तकलीदी कहा है या तहकीकी कहा है? आपने आला हज़रत को काफिर तकलीदी या तहकीकी? सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, आपको मुनाजरा करना है ना? हम मुनाजरा बिल्कुल मुनाजरा करना है। और ऐसा कोई देवबंदी की माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया है जो रजा मियाँ कादरी बरकाती के सामने आकर बैठ जाए। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरी बात सुनिए ना, पहले मेरी बात तैयार है आप? माशाअल्लाह, बताइए, तारीख बताइए। आप सुनिए ना, आप तारीख सुनिए ना, मेरी बात। जिस टॉपिक पे चाहे, जिस उन्वान पे चाहे, जब चाहे बात करने को तैयार हूँ। हर बार तुम भाग जाते हो यार, हर बार भागते क्यों? डर क्यों लगता है इतना? अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, पहले बोले। मुनाजरा ये बताइए, मुनाजरा किससे किया जाता है? पहले ये बता दीजिए मुझे, क्या झूठों से मुनाजरा करना चाहिए? आपके नजदीक मुनाजरा क्या है? झूठों से मुनाजरा नहीं करना चाहिए। मेरे का मकसद क्या है? सुनिए ना, मेरे नजदीक में झूठों से मुनाजरा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे दलील लोग झूठों से मुनाजरा नहीं होता। सुनिए ना, झूठों से मुनाजरा दलील पेश करो। अरे इसलिए कह रहा हूँ, हदीस है ना, दलील पेश करो। सुनो, हदीस अल-मुमिनु ला यकज़िब, मोमिन झूठ नहीं बोलता। जब मोमिन हदीस भी है कि मुसलमान नहीं बोलता है। जाहिद आज़म मुफ्ती साहब, आप ये बताइए, जो मोमिन होगा उससे मुनाजरा होगा ही क्यों? किस बात पर होगा? तो मेरी इसलिए मेरी बात सुनिए ना, आप काफिर है इसलिए तो मुनाजरा कर रही हैं। आपने जितने बड़े झूठ लोगों को बोला, ये जो मुनाजरा है वो कुफ्र और ईमान का मुनाजरा है, और आपने कहा तो मोमिन झूठ नहीं बोलता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर मोमिन होते तो मैं आपसे मुनाजरा करता ही क्यों? आप तो काफिर हैं। सबूत पेश करें कि झूठों से मुनाजरा नहीं होता। फैज़लम यातू बिशुहदाई फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, इसके तहत सबूत पेश करें आप। अरे भाई, फिर बोलने से कुछ ना, मेरी बात तो सुनिए ना। हमेशा अपनी बात करेंगे तो थोड़ी कुछ चलेगा। मेरी बात सुनिए, उसके बाद में मुफ्ती साहब पहले ये बताइए, आप बोलिए या मैं बोलूँ? ये बताइए, विचार करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आप बोलेंगे या मेरी बात सुनेंगे? ये बताइए। चलो 2 मिनट तय कर लेते हैं, ठीक है? 2 मिनट आप बोलो, 2 मिनट में। आप बोलेंगे अभी या मैं बोलूँ? ये बताइए। आप बोलो, चलो ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आपकी मुझसे इस मुनाजरे में जो आपने चैलेंज मुझसे किया है ना, मैं तो आपका नाम नहीं लिया था, पहली बात ये है, मैं जानता भी नहीं आपको। एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपसे सुनूंगा। जानता भी नहीं। आपने पोस्ट डाला कल परसों गालिबन, मुझे एक लड़के ने भेजा, ठीक है, कि मैंने मुफ्ती साहब को चैलेंज किया है ना, आपने ये किया ना? ठीक। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने भेजा कि फरार है। आप ये बताइए, आप जिससे मुनाजरा करना चाहते हैं उसको पता ही नहीं, और अपनी तरफ से आप घोषित कर दे कि वो फरार है, ये तो अच्छी बात है। ये बताइए पहले। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आमीन कहो मुफ्ती साहब, आमीन कहो। पहले ये बताइए ना, सुनो ना, पहले ये बताइए,
सुनिए ना, मेरे से कभी गुफ्तगू हुई है आपकी इस मुनाज़रे से सिर्फ कभी गुफ्तगू हुई है? अल्लाह की लानत आमीन कहो ना। हाँ, ये बात तो सही है, झूठ पर अल्लाह की लानत हो, लेकिन फिर ये बताइए आमीन कहो मुफ्ती साहब, मैं खामोश हूँ, आपकी खामोश रहकर सुन लें। पहले मेरी बात देखिए, इसलिए मैं आपको कहा पहले आप बोलिए मेरी बात, आपने कहा आप बोलिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात का जवाब दीजिए ना। आपसे मेरी गुफ्तगू हुई है इस चैनल मुनाज़रे के सिलसिले में, हुई है? ये बताइए। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। और अब मैं बोलूंगा, ठीक है, आप चुप रहें 2 मिनट। हाँ, नहीं पहले ये बताइए, सुनिए, पहले मुझसे कभी गुफ्तगू हुई है कि मुफ्ती साहब मैं आपसे मुनाज़रा करना चाहता हूँ, ये मुफ्ती साहब आपसे बात हुई है? मेरा नंबर भी आपके पास है, ये बताइए। बिल्कुल हुई है आपसे बात। अच्छा बताइए कौन सा बात है, रिकॉर्डिंग भेजिए, रिकॉर्डिंग भेजिए, आपने चैनल पर डालिए। आप सुने मेरी बात, सुने आप, अब आपकी बात होगी, मेरी बात सुने, अब मेरी बात तो सुने आप। मैं आपको सुनूंगा पर आप पहले मेरी इस बात का जवाब दीजिए। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ कि आपको मुनाज़रे की पता है कि नहीं पता, यही तो मैं बता रहा हूँ, सुने आप। नहीं पहले ये बताइए ना, आप पहले ये बताइए कि मुझसे गुफ्तगू हुई है, हाँ या ना, उसके बाद बात करेंगे। बिल्कुल हुई है। कहाँ हुई है बताइए ना, कब हुई है? वही तो बता रहा हूँ, जब आप खामोश होंगे तभी तो मैं बोलूंगा। बताइए। आपका ये दावा है कि जिसको मुनाज़रे का चैलेंज किया गया उसको तो पता ही नहीं है। हाँ, तो हजरत, आपको मैंने कल स्क्रीनशॉट भेजा था कि देखो ये मैंने चैलेंज किया आपको, ठीक है। आपने कहा कि आलिम की सनद भेजो अपनी, ठीक है, व्हाट्सएप चैट पड़ी हुई है, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। चलिए आपने और इसी नंबर से, जिस नंबर से आप फॉलो कर रहे हैं, इसी नंबर से। ये अकेडमी का नंबर बोलिए ना, ये अकेडमी का नंबर है, मेरा नंबर नहीं, मेरा नंबर आपके पास है भी नहीं, ये अकेडमी का नंबर है। अच्छा, अकेडमी के नंबर से आप क्या कर रहे हैं फिर? कहाँ है आपकी अकेडमी? सुनो ना, अकेडमी मेरा है, अल कुरान अकेडमी लुधियाना। तो अकेडमी कहाँ है? लुधियाना। नंबर तो आपके पास ही रहता होगा या किसी हैंडल के पास रहता है? ऑफिस रहता है, मेरा फैयाज साहब ने मुझे बताया, इसलिए कह रहा हूँ, मुझे बताया था उन्होंने, इसलिए मैंने जोहर के वक्त देखते ही मैंने आपको फौरन कॉल किया। चलो ठीक, आपको चलो बताया तो था, आप कह रहे हैं पता ही नहीं है, आप कह रहे हैं पता ही नहीं है। और मौलाना सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने ये कहा ठीक है, अभी एक यहीं पे सुनिए, आपने कहा कि मुझसे बात नहीं हुई, लेकिन आपने चलो फैयाज के जरिए बताया, अभी चलो उस मैसेज किया ना, आपने ये कहा, लेकिन इसके सिलसिले में ये तो नहीं हुआ ना कि तारीख भी तय नहीं हुआ, डेट भी तय नहीं हुआ, और अपनी मर्जी से आप घोषित कर एक दिन के अंदर ही फरार हो गए। आप तो 1.5 साल से फरार हो गए। मैं 304 को कॉल किया आपके पास, सुनिए 1.5 साल से। मेरी बात सुनिए, आपने घबरा क्यों रहे हैं, पानी पी लीजिए आप। मैं घबरा नहीं रहा, टेंशन इस बात की हो रही है कि झूठ की मार है, अदू के सीने में डार है, मौलाना जो इसका बार है। हो रहा है कि आप लोग उम्मत को गुमराह करने के लिए झूठ तक बोलते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप सबसे बड़े झूठे हैं। मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि आप मेरे सामने बैठकर बात भी नहीं कर सकते हो, चैलेंज इतना बड़ा कि मुफ्ती सूफी को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, तुम मेरे सामने नहीं बैठकर बात कर सकते यार। मुनाज़रा के लिए इल्मी लेवल भी होने चाहिए, उसी तरह झूठ ना बोले इंसान। जब आप झूठ बोलते तो कुरान को झुठला सकते हैं आप, जब खुद झूठ बोले कुरान को झुठला देंगे, हदीस को झुठला देंगे आप। क्या भरोसा किया जाए आपसे क्या मुनाज़रा किया जाए? सर झूठों से मुनाज़रा नहीं होता, इस पे एक दलील पेश करो। बट सुनिए ना, इसलिए कह रहा हूँ दलील पेश करो। सुनिए अरे मुनाज़रा होता ही झूठों से है, झूठ से मुनाज़रा होगा ना, मेरे मुनाज़रा होता ही झूठ। अगर मोमिन होगा उससे किस चीज का मुनाज़रा होगा? जो मोमिन होगा उससे किस चीज का मुनाज़रा होगा, ये बताएं आप। मुनाज़रा होता ही झूठों से है, जैसे कि अशरफ अली थानवी ने तो झूठ बोला अपनी किताब में।